تو شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، جوہر ٹاؤن، ٹاؤنشپ، ماڈل ٹاؤن میں بارش، کچا جیل روڈ، مولانا شوکت علی روڈ کے طرف بارش، کالج روڈ، کوٹ لکھپت اور گرین ٹاؤن میں بارش ہوئی، فیروز پور روڈ، چونگی امر صدو، والٹن روڈ کے طرف بارش، نشتر ٹاؤن، ڈسپوزر سب سے زیادہ 25.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن میں بارش ہوئی، کچا جیل روڈ، مولانا شوکت علی روڈ کے طرف بھی بارش ہوئی ہے، کالج روڈ، کوٹ لکھپت اور گرین ٹاؤن میں بارش ہوئی، فیروز پور روڈ، چونگی امر صدو، والٹن روڈ کے طرف بارش ہوئی، نشتر ٹاؤن، ڈسپوزر سب سے زیادہ 25.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن میں بارش ہوئی، کچا جیل روڈ، مولانا شوکت علی روڈ کے طرف بارش ہوئی، کالج روڈ، کوٹ لکھپت اور گرین ٹاؤن میں بارش ہوئی، فیروز پور روڈ، چونگی امر صدو، والٹن روڈ کے طرف بارش ہوئی، نشتر ٹاؤن، ڈسپوزر سب سے زیادہ 25.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ستھرا پنجاب مہم میں رہائشی علاقوں میں مویشیوں کی موجودگی بڑی رکاوٹ بن گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے تحصیل نشتر، گجمتا کے طرف مویشیوں کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران 20 حویلیاں اور باڑے مسمار جبکہ 200 مویشی منتقل کر دیے گئے۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت رہائشی علاقوں میں مویشیوں کی موجودگی کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے کارروائی شروع کر دی۔ تحصیل نشتر کے علاقے گجمتا کے طرف اسسٹنٹ کمشنر نشتر محمد سلیم آسی کی قیادت میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران رہائشی علاقوں میں قائم 20 حویلیاں اور باڑے مسمار کر دیے گئے جبکہ 200 مویشیوں کو منتقل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق مویشیوں کی موجودگی کے باعث علاقے میں صفائی ستھرائی کی صورتحال سنگین ہو رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر نشتر محمد سلیم آسی کا کہنا تھا کہ مویشیوں کو از خود منتقل کرنے کے لیے مالکان کو بارہا نوٹسز دیے گئے، تاہم عمل درآمد نہ ہونے پر کارروائی کی گئی۔ زیر تعمیر نیلا گنبد پارکنگ پلازے منصوبے میں بڑی پیش رفت۔ ٹیپا اور کانٹریکٹرز نے پلازے کے گراؤنڈ لیول کی فائنل ٹاپ سٹوری کی سلیب ڈال دی ہے۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازے کی زیریں منزلہ 3 پارکنگ بیسمنٹ ہے۔ اس سے قبل زیر زمین فلورز کی بیسمنٹ سلیب مکمل کی گئی تھی۔ ٹاپ لیول سلیب گراؤنڈ لیول کی تھی جسے مکمل کیا گیا۔ گراؤنڈ لیول پر سلیب کے اوپر پارک، ریسٹ ایریاز اور فوڈ کورٹ بنانے کا پلان ہے۔ ٹیپا نے منصوبے کو مکمل کر کے اکتوبر 2026 کے اختتام پر ہینڈ اوور کرنا ہے۔ فنڈز کی کمی اور مانسون کے چیلنجز کے باوجود ٹیپا اور کانٹریکٹرز نے فائنل فلور کی سلیب کو مکمل کیا ہے۔ آرکیٹیکٹ انجینئرنگ سوسائٹی انتظامیہ، PCSIR فیز 2 سوسائٹی اور LDA کی ملی بھگت کے خلاف شہری سراپا احتجاج۔ غیر قانونی سب ڈویژن کمرشل تعمیرات، بوائز گرلز ہاسٹلز کھلوانے پر پرامن احتجاج کیا گیا۔ DG LDA آفس کے سامنے خواتین، بزرگ رہائشیوں نے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔ آرکیٹیکٹ انجینئرنگ ہاؤسنگ سوسائٹی اور PCSIR فیز 2 کے رہائشیوں نے احتجاج کیا۔ غیر قانونی سب ڈویژن کمرشل تعمیرات، بوائز گرلز ہاسٹلز کھلوانے پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ غیر منتخب خود ساختہ انتظامیہ کا قبضہ ختم کرایا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی تعمیرات بند کروائے جائیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کروا کر رہائشیوں کا جینا محال کر دیا گیا ہے، نوٹس لیا جائے۔ پنجاب کے مختلف سرکاری اسکولوں میں خدمات انجام دینے والے 4000 اسکول گارڈز کو ملازمت سے نکال دیا گیا۔ متاثرہ گارڈز نے حکومت سے نوٹس لینے اور دوبارہ ملازمت پر بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے شملہ پہاڑی کے باہر ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے احتجاج کیا۔ متاثرہ گارڈز کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے سرکاری اسکولوں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، تاہم اب انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ملازمت ختم ہونے کے باعث گارڈز اور ان کے خاندانوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ ملازمین نے شکوہ کیا کہ ملازمت سے برطرف کیے جانے کے ساتھ ساتھ انہیں جولائی کے مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ اسکول گارڈز نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے، برطرفی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور انہیں دوبارہ ملازمت پر بحال کیا جائے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے شہر کی تجارتی منڈیاں بھی شدید متاثر۔ 9 روزہ ہڑتال میں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ امپورٹ ایکسپورٹ بند ہونے سے شہر کی منڈیوں میں بھی مندہ رہا۔
हड़ताल खत्म होने से ताजरों ने भी सुख का सांस लिया। 9 दिन के अंदर हमारे साथ बड़ा तावन किया, आप हमारी आवाज़ बने। आपको पता है 25,000 छोटी से बड़ी गाड़ियां लाहौर से बाहर ताजरों का सामान लेके जाती हैं और 25,000 गाड़ियां जो दूसरे सूबों से लाहौर के अंदर एंटर होती हैं। ये रिकॉर्ड पूरे लाहौर की इंतज़ामिया को पता है, लेकिन 9 दिन के अंदर लाहौर चैम्बर के कान के ऊपर यूं भी नहीं रिंगी। लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मैंने उनके आगे अपील भी की। हम ताजरों ने अपने तौर पे आवाज़ उठाई, जिसके ऊपर ये रिलीफ मिला। 45 दिन के लिए ये हड़ताल को मुखर किया गया। जो अरबों रुपए का ताजरों को नुकसान हो गया, जो दुकानें छोटे ताजर हैं जिन्होंने रोज़ सामान भेजना होता है और उनकी पेमेंटें उनको मिलनी होती है, उसका कौन जिम्मेदार है? शहर के 2 अहम डिवीजन में एसपी तैनाती के मुंतज़िर, सीटें खाली होने से इंतजामी उमूर के साथ साइलिन भी परेशान हैं। एसपी ऑपरेशंस कैंट और एसपी ऑपरेशंस सदर की खाली सीट पर तैनाती ना हो सकी। दोनों डिवीजन में एसपी इन्वेस्टिगेशन को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। एसपी ऑपरेशंस ना होने से कैंट और सदर डिवीजन के इंतजामी उमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। एसपी ऑपरेशंस की सीट खाली होने से साइलिन को भी मुश्किलात का सामना है। एसपी कैंट ऑपरेशंस की सीट अख्तर नवाज, जबकि सदर की सीट शाहरुख के तबादले पर खाली हुई थी। टैक्स दहिंदगान से बिजली पर 30 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स वसूली का मामला। एफबीआर ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों और के इलेक्ट्रिक से तफसीलात तलब कर ली हैं। जुलाई 2026 के बिजली के बिलों में 30 रुपए और 5 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स वसूली की तफसीलात जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। मखसूस टैक्स दहिंदगान से बिजली पर 30 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स वसूली का मामला। एफबीआर ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों और के इलेक्ट्रिक से तफसीलात तलब कर ली। जुलाई 2026 के बिजली के बिलों में 30 रुपए और 5 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स वसूली की तफसीलात जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। एफबीआर ने स्टील मिल्स, री रूल्स और कंपोजिट मैन्युफैक्चरर्स से 30 रुपए फी यूनिट मखसूस टैक्स दहिंदगान से 5 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स वसूल करने की हिदायत की थी। एफबीआर ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों और के इलेक्ट्रिक को स्टील सेक्टर के मुतालिक टैक्स दहिंदगान पर सेल्स टैक्स के नए रेट्स के इतला की हिदायत कर रखी है। हिदायत के मुताबिक स्टील मिल्टर्स, री रूल्स और कंपोजिट मैन्युफैक्चरर्स से बिजली पर 30 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स वसूल किया जाना है। स्टील सेक्टर के बाद मखसूस टैक्स दहिंदगान के लिए ये शरह 5 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। एफबीआर ने चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू को मुतल्लिका डिस्कोर्स के साथ राब्ता रखने और नए सेल्स टैक्स रेट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की खुशदामद मिसेस तासीर की तीमारदारी की। वज़ीर ने मिसेस तासीर को गुलदस्ता पेश किया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर मरीम नवाज ने अस्पताल में ज़ेर इलाज सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की खुश आमद मिसेस तासीर की आयादत की है। वज़ीर ने मिसेस तासीर को गुलदस्ता पेश किया और उनके जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। डॉक्टर्स ने वज़ीर को ज़ेर इलाज मिसेस तासीर की बीमारी और तिबी सूरत हाल बारे भी ब्रीफिंग दी। मिसेस तासीर गुज़श्ता 4 रोज से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के आईसीयू में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर ने अस्पताल में मौजूद दीगर मरीजों और उनके लवाकिन से भी मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी। वज़ीर ने मरीजों और लवाकिन को दरपेश मसाइल का फौरी अज़ाला करने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी लाहौर और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पीपल्स पार्टी लाहौर की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा शौकत ने कहा कि थानों में ख़वातीन के साथ सेफ्टी प्रोवाइडर्स इससे एहसान कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी लाहौर की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा शौकत, सबाह सदीक, ज़रमीन मज़ारी, डॉक्टर अरूबा साकिब, आयशा उमर नसीब और महविश ने शिरकत की। डॉक्टर आयशा शौकत ने कहा कि थानों में ख़वातीन के साथ सेफ्टी प्रोवाइडर्स इस्तेसाल कर रहे हैं। मुल्क की आधी आबादी इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। ख़वातीन और बच्चों के साथ जराइम में कमी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हैं। हम यहाँ गलतियों की निशानदेही नहीं, बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। रूरल और अर्बन इलाकों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज हमने ये जो सेमिनार मुनक्कद किया, वो जिस तरीके से आप खबरों में देख रहे हैं कि जो सेफ्टी प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं के यहाँ औरतों का एहतसाल हो रहा है। जिस तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ का रेट जो है वो बढ़ रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है आईन पाकिस्तान वो हुकूमत को ये रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि वो तमाम
जो पाकिस्तान के बच्चे हैं और औरतें हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें, उनको फ्री हेल्थ सर्विस दें और उनको फ्री एजुकेशन दें। सो इसी सिलसिले में मैंने अपने साथ आज सिविल सोसाइटी की भी खवातीन उनको भी मदऊ किया ताकि वो भी अपनी बात कर सकें, और वो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा अपनी अपनी कैपेसिटी में औरतों के लिए और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। हमने उनको इसलिए मदऊ किया क्योंकि हुकूमत को लगता है कि जब हम, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी जब ये बात करती है तो उनको लगता है शायद तनकीद कर रहे हैं, तो ये तनकीद नहीं है, ये एक्चुअल एक रियलिटी चेक है, ये वाक़यात हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसलिए उन सबको भी हमने मदऊ किया कि वो ये बातें आप तक पहुंचा सकें। डायरेक्टर जनरल कस्टम्स वैल्यूएशन इरफान वाहिद का लाहौर चैम्बर का दौरा। इरफान वाहिद की सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल से मुलाकात हुई। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान करामत अली आवान मौजूद, फिरदौस निसार, आमिर अली, डायरेक्टर वैल्यूएशन लाहौर साइमा आफ्ताब की शिरकत। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स लाहौर पलवशाह सैयद समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कस्टम्स वैल्यूज आलमी मार्केट की हकीकी कीमतों के मुताबिक होने चाहिए, फ़हीमुर रहमान सहगल की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहा कि कारोबारी बरादरी टैक्स और ड्यूटीज़ की अदायगी से गुरेज नहीं करती। वैल्यूएशन रूलिंग्स पर बाकायदगी से नज़रसानी और बर वक्त अपडेट ज़रूरी है। इरफान वाहिद की जानिब से ये कहा गया। फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना था कि मोबाइल एसेसरीज़ की वैल्यू में इजाफा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि इरफान वाहिद का कहना है कि मोबाइल एसेसरीज़ की वैल्यूएशन का मामला आइंदा हफ्ते ज़ेर समाअत लाया जाएगा। मज़ीद कहा कि परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की वैल्यूएशन बारे रिव्यू दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। शहर की ताजिर बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। सदर टॉयज़ मार्केट, मोची बाजार, ज़ियाउद्दीन भट्ट की जानिब से केक काटने की तकरीब हुई। पैट्रन इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ की खुसूसी शिरकत। तकरीब में सदर पेटमा वकार अली, ज़ीशान सुहेल, मलिक नईम हनीफ ने शिरकत की। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर नबील महमूद व इरफान सुल्तान शरीक हुए। मज़ीद अहवाल जानेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। लाहौर की ताजिर बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से जो तकरीबात का सिलसिला है वो ताहाल जारी है, और आज टॉयज़ मार्केट आजम मोची गेट के अंदर जो है वो केक काटने की तकरीब का तमाम किएगा, जिसमें पैटमा चेयरमैन पैटमा की जो क्यादत है वो मौजूद है। उसके साथ साथ जो पैटर्न चीफ प्याफ है उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी की शिरकत भी की, मौजूद भी इनसे बात करेंगे। जी मियाँ साहब, क्या कहेंगे, ताजिर बरादरी जो है वो जश्न आज़ादी का केक भी काट रही है, मना भी रही है, और साथ में लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। तो क्या नया देने वाले हैं इस दफा? अलायंस तो बड़े बनते जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब पेटमा की चेयरमैन जनाब सदर जो हैं वकार साहब का, और नबील साहब का, बाऊ ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का, बाऊ सुल्तान साहब का, इरफान साहब का, और गुल मोहम्मद साहब का, और तमाम दोस्तों का जो सदाकारा बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। हमेशा ये कोशिश की है कि लाहौर चैम्बर को प्लेटफॉर्म को बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि अभी हम आ रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना शफकत पराचा साहब और अवैस पराचा साहब जो फाउंडर के जो अपना लाहौर चैम्बर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे और फाउंडर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे बदामी बाग में, आज उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है बिजनेस कम्युनिटी के हमने काम किए। जो बंदा काम लेके आया है, आप यकीन करें लाहौर चैम्बर के दरवाजे से खाली वापस नहीं किया। ये अल्लाह ताला की खास इनायत और मेहरबानी थी। आप शालम मार्केट में देख लें, दर्जनों ट्रांसफार्मर लगवाए, नफीस साहब आपके साथ खड़े हैं, सड़कें बनवाई। तो ये जो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो काम करवा के आया, और लाहौर चैम्बर की ये ड्यूटी है और हम सब की ड्यूटी है कि बिजनेस कम्युनिटी के काम हम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। जी पैटर्न चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार का यही कहना है कि लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से जो ताजिर बरादरी के जो गुज़श्ता काम थे वो भी हुए। अब नई क़यादत है वो नए जोश और जज्बे के साथ मुंतखब होगी और ताजिर बरादरी की वोट की ताकत से मुंतखब होकर ताजों पे काम आएगी। जी सईद, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में अलखिदमत फाउंडेशन के ख़वातीन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 60 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दुल्हनों को शादी गिफ्ट बॉक्स, सलामी और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया।
मुस्तहिक खानदानों की मदद के लिए अल-खिदमत खवातीन ट्रस्ट की जानिब से 60 बच्चियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। दुल्हनों को शादी गिफ्ट बॉक्सेस, सलामी और दीगर जरूरी सामान फराहम किया गया। तकरीब में खवातीन पर मुश्तमिल पैनल ने रस्मों से रिश्तों तक के मौजू पर गुफ्तगू की। नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान साइमा शब्बीर का कहना है, मुस्तहिक बच्चियों की शादी में मुआवनत अल-खिदमत की समाजी खिदमत का अहम हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 60 बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया है और उन्हें बेसिक गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। हमारी बस कोशिश ये है कम्युनिटी सर्विसेज के तहत कि कोई भी बच्ची सिर्फ सामान की वजह से अपने घर की दहलीज पर बैठी ना रहे और वो बाइज्जत तरीके से अपने घरों से रुखसत हो सके। जमात इस्लामी हल्का खवातीन की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हुमैरा तारिक ने कहा कि चाहते हैं कि साहिब इस्तात अफराद भी जरूरतमंद खानदानों की खुशियों में शरीक हों। यह खिदमत फाउंडेशन की हमारी बहनों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, काबिल तहसीन है कि वो बेटी जो वालिद की घर की दहलीज पे इस इंतज़ार में बैठी रहे कि उसके पास जहेज नहीं है। हर साहिब दिल शख्स को मदद करनी चाहिए, अल-खिदमत फाउंडेशन का साथ देना चाहिए ताकि कोई बेटी वालिद की दहलीज पर अपने निकाह के इंतज़ार में बैठी न रहे। नई जिंदगी के आगाज पर चेहरों पर खुशी और आंखों में उम्मीद लिए दुल्हने अल-खिदमत की जानिब से मिलने वाली इस मुआवनत पर शुक्रगुजार दिखाई दी। हमने एप्लीकेशन दी थी इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो मंजूर हुई है तो उन्होंने हमें कॉल किया कि आप आएँ, अल-खिदमत आपको जहेज बॉक्स देगी ताकि आपकी शादी इजली हो सके और पेरेंट्स पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। अल-खिदमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ें लड़की का ख्वाब होती हैं, किस तरह का हॉल हो, सामान हो हमारे पास अपना, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए किया। थैंक यू सो मच। वालिदैन ने कहा, हम अल-खिदमत के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी बेटी की शादी में बहुत ताउन किया। बहुत ज़्यादा इनके हम दिल से शुक्रगुजार हैं। इन्होंने जो हमारी बच्चियों के लिए किया है, तमाम बच्चियों के लिए किया, अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया और तमाम जो लोग हैं अदारे के, इन्होंने खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे ताकि वो आगे भी ये खिदमत अंजाम देते रहे। अल-खिदमत के मुताबिक मुस्तहिक खानदानों की मुआवनत का ये सिलसिला गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 16,700 शादी गिफ्ट बॉक्सेस तकसीम किए जा चुके हैं, जिन पर 1 अरब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कैमरामैन आगा ज़ैन के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। आईजी पंजाब ने बदउनवानी नाक़िस कारकर्दगी पर एक DSP को मुअत्तल कर दिया है। शाहिद जावेद को DSP ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंक के अहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद शाहिद जावेद को फौरी मुअत्तल करके CPO पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तो आपको बताते चलें, आईजी पंजाब ने बदउनवानी नाक़िस कारकर्दगी पर एक DSP को मुअत्तल कर दिया है। शाहिद जावेद को DSP ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंक के अहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद शाहिद जावेद को फौरी मुअत्तल करके CPO पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए बड़ा इक़दाम। 457 स्कूलों में ECE कॉर्नर बुक लाइब्रेरीज कायम करने का फैसला। कॉर्नर बुक लाइब्रेरियों के लिए फी स्कूल 25,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 457 मुंतखब स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट अकाउंट्स में 25,000 रुपए फी स्कूल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। स्कूलों को ECE कॉर्नर के लिए कम अज़ कम 50 मुख्तलिफ किताबें खरीद कर रखी जाएंगी। ECE कॉर्नर की किताबें पेक्टा की मंजूर शुदा फहरिस्त से खरीदना लाजिम करार दिया गया है। किताबों के इंतखाब में ECE के 5 तालीमी शोबों को कवर करने की हिदायत कर दी। ज़ाती, समाजी और जज्बाती नशोनुमा, ज़बान ख़वानगी और बुनियादी रियाजी शामिल हैं। दुनिया से आगाही और तख्लीकी सलाहियतों से मुतालिक किताबें भी खरीदने की हिदायत कर दी गई है। ECE कॉर्नर की किताबें स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए खरीदे जाएंगे। मुंतखब स्कूलों को 10 सितंबर 2026 तक ECE कॉर्नर बुक लाइब्रेरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की काउंसिल जनरल श्रीलंका यासीन जोया से मुलाकात। नौजवानों में मुनशियात के बढ़ते रुझान, इलाज मुआलजे की सहूलियात और हुनरमंद प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सितंबर में मुनशियात के खिलाफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन वर्कशॉप मुनक़िद करने का ऐलान किया गया। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सैयद मोहसिन ने काउंसिल जनरल श्रीलंका यासीन जोया से मुलाकात की, जिसमें यासीन जोया को सिविल अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। यासीन जोया ने सिविल अवार्ड से नवाजे जाने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
मुलाकात में नौजवानों में मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान, इलाज मुआवजे की सहूलियात और नौजवानों के लिए हुनरमंद प्रोग्राम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काउंसिल जनरल श्रीलंका यासिन जोया ने बताया कि सितंबर में मुनशियात के खिलाफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन वर्कशॉप मुनाकिद की जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हार्टिकल्चरल एजेंसी अहमद उस्मान जावेद का मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट का अचानक दौरा। एमडी ने मेडिकल सेंटर का भी दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर एडमिन सोनिया कलीम, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन फरादीबा ने ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर मार्केटिंग नईम अफजल हसन अहमद ने रेवेन्यू अहदाफ और रिकवरी बारे ब्रीफिंग दी। एमडी का मेडिकल सेंटर का भी दौरा और सहूलियात का जायजा लिया। एमडी अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत मार्केटिंग डायरेक्टोरेट का इजलास भी हुआ। एडिशनल एमडी तस्लीम अख्तर राव भी मौजूद थे। एमडी ने कहा कि मार्केटिंग डायरेक्टोरेट्स का किरदार निहायत अहम है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाएं। एमडी ने कहा कि ब्रांड्स, शॉप्स, डिलीवरी व्हीकल्स का सर्वे किया जाए। सेशन कोर्ट में सहूलत सेंटर को मजीद फाल कर दिया गया। सहूलत सेंटर में वकला के लिए एक अलग से काउंटर बना दिया गया, जहां वकला को जेल से अपने मुलजिम से वकालतनामे में दस्तखत की सहूलत फराहम कर दी गई। सेशन कोर्ट सहूलत सेंटर में वकला के लिए बनाए गए अलग काउंटर में जेल से वकालतनामे लेकर जाने और वापस लाने के लिए दोनों जेलों से एक एक वार्डन की ड्यूटी लगाई गई है। रोजाना दोनों जेल से 300 से 350 मुलजिमान के दस्तखत से जेल इंतजामिया वकालतनामे भिजवाए जा रही है। सहूलत सेंटर में किसी भी जज या अदालती एहलकार के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। रोजाना 5000 वकला और साइलिन सहूलत सेंटर से सहूलत हासिल कर रहे हैं। अदालती तातीलात के बाद सेशन कोर्ट के सहूलत सेंटर में वकला और साइलिन की दिलचस्पी को देखते हुए मजीद सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। लेस्को के ज़ेर एहतमाम शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के एजाज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद हुई। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड लेस्को आमिर ज़िया, लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान बट, चेयरमैन गेपको मुजाहिद परवेज चट्टा समेत अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब में जनरल मैनेजर टेक्निकल राय मोहम्मद असगर, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर मोहम्मद जाफर मुर्तज़ा और चीफ इंजीनियर TS चौधरी निसार सरवर को अवार्ड दिए गए। इसी तरह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद अहमद सईद, PDG SC जाहिद क़य्यूम खोकर, डिप्टी मैनेजर मिराड उस्मान एजाज, मैनेजर कमर्शियल नुमान महमूद मल्ही और रेवेन्यू अफसर सैयद अतहर हुसैन को भी नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ी अवार्ड से नवाजा गया। लेस्को के मीटर इंस्पेक्टर, लाइन सुपरिटेंडेंट्स, मीटर रीडर, लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन को भी नुमाया खिदमात पर अवार्ड दिए गए।